ગઈ બરાબર એવું બધું કર્યું જ હશે તમે લોકોએ બધાએ અને બધાને કોઈ એવું સ્પેશિયલ ફ્રેન્ડ હશે જ પણ માસ્ટર્સમાં વી આર ગોઈંગ ટુ બી રેડી ફોર ધ ઇન્ડસ્ટ્રી રાઈટ હવે આપણે કંપનીમાં જ્યારે જશું ત્યારે બિલકુલ એવું જરૂરી નથી કે તમારો જે ખાસ ફ્રેન્ડ છે જે તમારી સાથે જ બેસે છે ડેઈલી અને પ્રોજેક્ટમાં પ્રેઝન્ટેશનમાં બધી જગ્યાએ તમારો પાર્ટનર છે એ જ વ્યક્તિ તમારી સાથે કંપનીમાં આવશે તમને લાગે છે કે બંનેનું પ્લેસમેન્ટ એક જગ્યાએ થાય નથી જ થવાનું 100% નહીં થાય એટલે હવે તમે લોકો એ સ્ટેજ ઉપર આવી ગયા છો કે હવે તમારે પ્રોફેશનલી બિહેવ કરતા શીખવાનું છે હવે અને અત્યાર સુધી તો એવું હતું બિફોર કોરોના કે તમે લોકો અહીંયા આખો ક્લાસ અહીંયા જોઈ એટલે કદાચ જૂનો ફ્રેન્ડ તો સાથે હોય પણ બીજા 5 ફ્રેન્ડ બન્યા હોય અને તમારું ગ્રુપ બની ગયું હોય રાઈટ અને તમારે કંઈ પણ કામ કરવું હોય તો તમને અહીંયા જ બધા ગ્રુપ મેમ્બર્સ છે અવેલેબલ હોય એ જ વસ્તુ તમને કંપનીમાં થાય કે તમારી પહેલાના સુપર સિનિયર્સ જે છે એ લોકો એમની કંપનીમાં જઈને જ કામ કરતા એમની ટીમ આખી એમની સાથે જ બેઠી હોય રાઈટ પણ હવે મોડ આખો આવી ગયો છે હાઇબ્રિડ હવે આ પેન્ડેમિક જતું રહેશે ને કોરોના જશે તો બી એવું થશે કે કંપનીઝને ઘણી બધી કંપની એવું કરી નાખ્યું છે પરમાનન્ટ વર્ક ફ્રોમ હોમ આપવા માંડી છે બહુ બધી કંપનીઝ છે એમએનસી છે એ લોકો શું કહે છે અમે તમને ઘરે ઓફિસ સેટઅપ માટે ફર્નિચર લેવાના પૈસા આપશું તમારું એસી નું બિલ તમારું વાઈફાઈ નું બિલ એ અમે ભરશું પણ તમારે ઓફિસ આવવાની જરૂર નથી રાઈટ આવું સિચ્યુએશન હવે આવી ગઈ છે બહુ મોટી મોટી માઇક્રોસોફ્ટ વાળે એવું વિચારે છે કે ભલે એમ્પ્લોઈઝ ઘરેથી કામ કરતા તો હવે આવા સિચ્યુએશનમાં તમારા ટીમ મેમ્બર્સ છે એ અડધા તમારી સામે ઓફિસમાં હોય તમે હાઇબ્રિડ કલ્ચરમાં જાઓ છો ચલો તમે એમ કહો કે મારે ઘરેથી કામ નથી કરવું હું તો ઓફિસ જઈશ તમે ઓફિસ જાઓ છો પણ તમારા ટીમમાંથી 50% લોકો ઘરે છે ઓનલાઈન કામ કરે છે તો શું તમે એમ કહેશો ના એ ટીમમાં હું કામ નહીં કરું એવા ટીમ મેમ્બર્સ કે જે ઘરેથી કામ કરે છે એની સાથે હું કામ નહીં કરું એવું કરશો હા હે ને કારણ કે ત્યાં એ ઓપ્શન જ નથી તમારી પાસે કે ના મારે આ ટીમ મેમ્બર તો મને અહીંયા સામે જોશે તો જ હું એની સાથે કામ કરીશ એવું આપણને ત્યારે સ્કોપ નથી મળ્યો તો એ જ વસ્તુની પ્રેક્ટિસ આપણે હવે કરવાની છે અહીંયા કે તમારા જે સ્ટુડન્ટ્સ ફ્રેન્ડ્સ છે કે જે કોલેજ નથી આવતા પરમેનન્ટલી એ લોકો ઓનલાઈન અત્યારે કોલેજ આવવા નથી જ માંગતા અને ઓનલાઈન જેને પરફોર્મ કરવું છે ઓનલાઈન જ લેક્ચર અટેન્ડ કરવા છે એ અથવા તો બીજા ગ્રુપની અંદર છે ગ્રુપ હંમેશા એવું હોવું જોઈએ મને તો જો એવું કાલ તો મને એવો વિચાર આવ્યો કે હું જ ગ્રુપ બનાવું અને બધાને અલગ અલગ હોય ને એવાને જ ભેગા કરું કે કોઈ પણ અજાણ્યાની સાથે આપણી ટીમ બને એ ટીમની સાથે કામ કરતા આપણને આવડવું જોઈએ સાવ કેમ એવી વ્યક્તિ હોય કે જેની વાત કરવી ના ગમતી હોય પણ કરવું પડે કામ થાય ને એવું ઓફિસમાં તમે કહો ઓફિસમાં તો બોસ જ એવો હોય જેને બોલાવ જ ન ગમે તો નો કામ કરો છોડીને જતા રહ્યો કે તો પૈસા મળવાના ના પડી જોડી પડાય હે ને એ વસ્તુ માટે આપણે રેડી થવાનું છે અને કોઈ પણ કંપની હશે અહીંયાથી પ્લેસમેન્ટમાં 100 કંપનીઝનું લિસ્ટ છે આપણી પાસે બધી કંપની આવે છે બધી કંપની સારી જ છે અમે તો બોલાવીએ છીએ ઇટ મીન્સ કે સારી જ છે કંપની રાઈટ પણ ત્યાંથી તમને ઘણા સ્ટુડન્ટ્સના રિવ્યુ એવા મળશે કે ના એ કંપનીમાં ના જવાય અને ઘણા સ્ટુડન્ટના રિવ્યુ એવા મળશે કે હા એ કંપનીમાં તો જવાય કેમ જે સ્ટુડન્ટ્સને કોઈ પણ એન્વાયરમેન્ટમાં સેટ થઈને પોતાનું કામ કરતા આવડે એ લોકો એવું કે હા જવાય અને જેને એવું હોય કે ના ના મને તો આવું મળવું જ જોઈએ આ ફેસિલિટી મળશે તો જ મને તો મજા આવશે તો એ લોકો શું કહે અહીંયા તો બહુ વધારે પડતું કામ કરાવે છે ઉજાગરા કરવા પડે છે ઈ જ વસ્તુ સેમ બીજો હોય એમ કે તો અહીંયા મને બહુ બધું શીખવા મળે મારે થોડું ખેંચાવું પડે તો હું લર્નિંગ મને બહુ સારું મળે કે જે મને આગળ બહુ ફાયદો કરશે डिफरेंस है છે આપણા એટીટ્યુડમાં है ना आ एटीट्यूड नो डिफरेंस हिंदी में बोलूं और इंग्लिश में ओके पहले ही बोल देना था ना कि नहीं समझ में आ रहा है
कुछ समझ में नहीं आया मैं जो बोली वो? भूल गई। यहाँ पे गुजराती में सब बोल रहे थे तो मैं भी गुजराती में स्टार्ट कर दिया मैंने। શું થયું? સાચી વાત છે, ઠંડી લાગે. હા, ત્યાં તો ઠરી જ જવાય એવું છે. तब बता दिया. ओके. गुजराती समझने में लोड आता है. ठीक है, चलो अब याद रखूंगी. बोलो क्या एक्चुअली. आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो. क्या हुआ? ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो अभी मैं ध्यान रखूंगी कि हिंदी और इंग्लिश ही यूज होगा. नहीं करेंगे हम गुजराती यूज, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा. बस ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है. क्यों माइक ऑन नहीं करना है? आई होप सब लोग गुजरात में रहते हो. एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स से तो आप लोग गुजरात में ही हो, तो आपको गुजराती बेसिक तो समझ में आएगी. और मैं ऐसी टिपिकल काठियावाड़ी गुजराती भी नहीं बोलती हूँ कि आपको समझ में नहीं आए. बोलेंगे हम. एक्चुअली मेरा टोन आ जाता है. कंट्रोल करके मैं गुजराती बोलती हूँ तब भी नॉर्मल टोन में बोलती हूँ, पर कई बार काठियावाड़ी वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं. स्वीट होती है लैंग्वेज. स्वीट लैंग्वेज काठियावाड़ी गुजराती. वो बातें करेंगे, हम गुजराती में भी बातें करेंगे बाद में. बोलो मत, दैट्स ओके. नहीं बोलना है दैट्स ओके. आप हिंदी में बोलो, कोई बात नहीं. वो काठियावाड़ी तो बोलती थी અત્યાર સુધી. મને એમને તમને કીધું ના, એમાં મેમ થાય છે કે મેં હમણાં શું થયું? લાઈટ. પણ આપણે પ્રોજેક્ટર હજી ચાલુ જ નથી કર્યું. ત્યાં પાછળની લાઈટ બંધ ના કરતા. નહીં તો સુઈ જશે બધા. હા, એક સ્વિચ થી બધા બંધ. तो हमें प्रिपेयर होना है फॉर इंडस्ट्री, इसलिए ये प्रैक्टिस है. हम लोग ऐसे डिवीजन भी ऐसे ही करते थे अब तक कि एक ही कॉलेज वाले फ्रेंड्स हो वो एक डिवीजन में नहीं आए. कि आप सीखो दूसरे अननोन पर्सन के साथ फ्रेंडशिप करना, उनके साथ बॉन्ड करना. हमें कोई बहुत जन्मों जन्म की फ्रेंडशिप नहीं करनी है. दैट्स ओके. जस्ट बी अ क्लासमेट्स तो भी चलेगा, पर अच्छे क्लासमेट्स के वे में आप लोग एक ग्रुप बना लो और उसमें परफॉर्म करो. क्या? हाँ, केवाय केवाय बोलो. શું કહો છો? હા, એટલે બહુ વધારે પડતું પછી બહુ નજીક ફ્રેન્ડશિપ કરવા જાવ તો એમાં આવા મોટા મોટા ઝઘડા થઈ જાય. इसलिए तो बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा ग्रुप नहीं करना है. सबके साथ नॉर्मल रिलेशन रखना है. કેવું થાય છે મેં રિસેન્ટલી 2-3 જણાને મેસેજ કર્યા હતા બીજા બધા કે ગ્રુપ 2 ગ્રુપ 1 વાળા એ લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ જે અમે થોડી વાત કરી એટલામાં જ કહે છે અમે તો ગ્રુપ 2 માં છો.
તો ના આપણે નથી કામ ત્યાંથી नहीं, બસ ऐसा ऐसा वही एटीट्यूड गलत है। अगर ऐसा होगा तो मैं पूरा ऑफलाइन में से सबका ऑनलाइन कर दूंगी। अब सब लोग ऑनलाइन ही आओ। ऑफलाइन अलाउड नहीं है ना, मुझे कोई इश्यू नहीं है। हाँ, वन थिंग आज से मुझे वो बोलना है, कल से आपकी पाइथन की लैब है दोनों दिन आफ्टरनून में। एक दिन ग्रुप 1 की टर्न है, एक दिन ग्रुप 2 का टर्न, राइट? बट बोथ ग्रुप कैन अटेंड लैब ऑफलाइन वे में, दोनों ग्रुप। बट लैब के लिए सिर्फ पाइथन की लैब के लिए, क्योंकि सर ने बोला कि बच्चों को प्रैक्टिस की जरूरत है और वो ऑफलाइन आएंगे तो ज्यादा उनको समझ में आएगा। सो वी हैव डिसाइडेड कि आप लोग सब आ सकते हो, क्योंकि लैब में हमारे पास 2-3 लैब फ्री होंगी तब तो मैं आपको डिस्टेंस पे वहां पे बिठा सकूंगी, राइट? नहीं, नो एसक्यूएल के लिए अभी नहीं, अभी पहले एक के लिए स्टार्ट करो, धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। नो एसक्यूएल सारो सब्जेक्ट है। હજી મેં આગળ ग्रुप આગળ आपने अभी अभी ज्वाइन किया ना, क्या नाम है आपका? मौलिक। आपको मैं आज लिंक भेजूंगी एक, आप फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना और फिर मैं आपको दोनों में से एक ग्रुप में सेट कर दूंगी। आपको इसी ग्रुप में आना होगा, आप इसी ग्रुप में कंटिन्यू करो, ठीक है? और दिमाग में से ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वो निकाल देना। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इज जस्ट फॉर कि आपको आधे को ही मुझे यहाँ बुलाना अलाउड है, गवर्नमेंट का रूल है, इसलिए आपको मैं 50% में बुलाने के लिए आधे आधे ग्रुप में डिवाइड किया है। बाकी यू ऑल आर इन वन क्लास। तो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, या फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो अटेंड कर रहे हैं, तीनों ग्रुप में से किसी के भी साथ आप काम कर सकते हो। मैं तो बोलती हूँ कि आपको ऐसे ही चूज करना चाहिए कि दोनों ग्रुप में से आप स्टूडेंट्स मर्ज होके अपना ग्रुप बनाओ। तो आपको ऑनलाइन बैठे हैं जो लोग, डिस्टेंस पे अब तो सब पॉसिबल है ना, वीडियो कॉल से आप कनेक्ट होके बात कर सकते हो, सामने बैठ के मीटिंग कर रहे हो ऐसा ही लगेगा, राइट? उसमें बाजू में बैठ के फ्रेंडशिप करने की जरूरत नहीं होती है प्रोफेशनली, जो हमें प्रेजेंटेशन बनाना है या प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए। और अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसका दिमाग थोड़ा अलग चलता है हमारे से, तो दैट्स ओके, होगा ना ऐसा भी। हाँ, सुना बने 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 वही सीखना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मैनेज करके बेस्ट आउटपुट निकालना, वही हमें सीखना है। प्रोजेक्ट हम प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट देते हैं, हमारा पूरा इस सेमेस्टर में आपका पूरा एक सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट। क्यों रखा है ये? नॉट जस्ट टू टीच यू हाउ टू डेवलप अ प्रोजेक्ट, सिर्फ वो प्रोजेक्ट की प्रोसेस क्या है, उसमें कोड क्या करोगे, वो सिर्फ सिखाना है, वो इंटेंशन नहीं है बिल्कुल। साथ में आप लोग टीम में काम करो, वो भी इम्पोर्टेंट है। काम डिवाइड करो, उसमें ऐसा भी होगा कि आप में 2 लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं, 2 लोग कोडिंग कर रहे हैं, तो एक का कोड करने का तरीका कुछ अलग है, दूसरे का कोड करने का तरीका अलग है, और आपको दोनों के कोड को कंबाइन करना है। तो ये सब चीजें भी सीखनी है, उसमें भी झगड़ा होता है, तूने मेरी लूप इस तरीके से क्यों चेंज की, इसमें भी झगड़ा हो सकता है। मैंने कितनी मेहनत की थी ये कोड लिखने में, कोई भी बात पे झगड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। जब हमने मेहनत करके कोड लिखा हो ना, तब तो बहुत ऐसा हो कि मैंने कितना पूरी रात मैंने ढूंढा तब मिला था और तूने चेंज कर दिया। हाँ, हो सकता है ऐसा। राइट, तो ये जो मिथ है सबके दिमाग में, ऑनलाइन जो बैठे हैं वो सब भी सुनना कि अब वो चीज मुझे दोबारा सुनने को नहीं आनी चाहिए कि आप ग्रुप 1 में हो इसलिए मैं ग्रुप नहीं बनाऊंगा आपके साथ, या ग्रुप 2 में हो इसलिए आप मेरे साथ नहीं ऐड हो सकते। नो। और अगर ऐसा होगा तो मैंने जो भी रिक्वेस्ट आप सबकी एक्सेप्ट करके ग्रुप चेंज किया ना, वो सब मैं चेंज कर दूंगी वापस। फर्स्ट वर्जन मेरे पास है, भले सब अलग अलग हो जाए।
और हाँ, हम लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा दे एक्टिविटी जिसमें जितने भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि ओएडी है, नो एसक्यूएल है और पाइथन है, इन तीन का असाइनमेंट कंबाइनली आपको मिले और जिसका यूज आप कैपस्टोन में भी कर सको। ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, तो आपका एक ही ग्रुप 3-4 सब्जेक्ट में कॉमन रहेगा, अगर जो ऐसा हुआ तो, अगर वो फिजिबल हुआ तो। बट बी प्रिपेयर्ड कि डिफिकल्टी लेवल विल बी हाई, क्योंकि हमें इतने दिनों में इतना तो समझ में आया कि लास्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे से आराम किया है। ऑनलाइन अटेंड करना था सब, इसलिए जो प्रैक्टिस एक्चुअल में होनी चाहिए वो नहीं हुई है, और उसकी वजह से आपने जो पढ़ा हुआ है वो भी आप लोग भूल गए, है ना। तो दिस सेमेस्टर विल बी समवॉट डिफिकल्ट फॉर यू। थोड़ा सा ऐसा लगेगा, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी काम करने की, फिर नहीं लगेगा, फिर मजा आएगा। एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर प्रोजेक्ट प्लेसमेंट ऑल्सो। नहीं, ऐसा नहीं करना है एक कोड करे, एक R&D करे, एक रिसर्च करे, डिजाइनिंग करे, ऐसा नहीं करना है। सब लोगों को साथ में मिलके काम करना है, वही सीखना होता है टीम में। और सभी ग्रुप में सभी लोगों को अकोमोडेट करना सीखना। ऐसा मत करना है कि नहीं इसको मैं ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो अभी पढ़े। आपको कोई इश्यू फेस हो रहा हो अब तक जो पढ़ाई हुई उसमें से, और आप डिस्कस करना चाहते हो, देन यू कैन। आज बातें की है तो फिर वो डिस्कशन भी कर लेते हैं। है कोई ऐसा इश्यू जो आपको मुझे बताना है, या आपको एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ? हाँ बोलो। बाइनरी सर्च करना है वापस? ओके, बोर्ड पे करवाऊं या? चलो बोर्ड पे करते हैं। स्मूथ लाइक बटर, वेरी गुड, इट इज अप्रिशिएबल। ऐसा बोले ना स्टूडेंट्स, तो हमें बहुत मजा आ जाए। सब स्मूथ चल रहा है, आपको कोई इश्यू नहीं है? हाँ, તો તમને કોઈ તકલીફ છે? ખાડા આવે છે? હા, સ્મૂથ નથી તો શું કોઈ તકલીફ વાળું છે? नहीं, सीरियसली यू कैन डिस्कस। आपको मेरा एटीट्यूड ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बात नहीं कर सको मुझसे, नहीं है ना? तो कोई ऐसा लगे आपको अगर इश्यू कि फ्रेंकली अगर आपको बात करनी हो तो पर्सनली भी बात कर सकते हो, ऐसा नहीं क्लास के सामने नहीं बात करनी है तो पर्सनली भी आके यू कैन कांटेक्ट मी। सभी को, ऑनलाइन भी जो भी है, जिनको भी जो भी इश्यू लगे, यू कैन डिस्कस। यहाँ पे करेंगे।
ड्राई रन करना है ना, बाइनरी सर्च करना है ना, प्रोसेस 3। ये हमारा एरे है, राइट। इसमें हमने वैल्यू दी है ऐसी वैल्यू हमने दी हुई है। अब की वैल्यू अवर सर्च की इज क्या लेंगे, 44। इनिशियल हम स्टार्ट करेंगे विथ 0 and 5। 0 and 5 first will be 0 and last will be 5, right? Mid will be 0 plus 5 divided by 2, मतलब 2.5 એટલે 2। तो मिड वैल्यू इज 2। कंडीशन क्या है हमारी, इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू की, अगर सेम है एरे ऑफ मिड की वैल्यू हमारे की जैसी है तो हमारा सर्च वहां पे खत्म हो जाता है, राइट। मतलब 31 इज इक्वल टू 44, नो, कंडीशन इज फॉल्स, राइट। तो क्या करेंगे, ये कंडीशन तो प्रूव नहीं हुई। सेकेंड कंडीशन, इफ ए ऑफ मिड इज लेस देन की, मतलब की वैल्यू बड़ी है और हमारी जो वैल्यू मिली है वो छोटी है। यस यस, यहाँ पे वही है कंडीशन, 31 इज लेस देन 44, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को मूव करवाएंगे। क्यों फर्स्ट को मूव कर रहे हैं, ये लॉजिक क्यों आया, क्योंकि हमें पता चला कि हमारी की वैल्यू है वो हमें जो मिडिल वैल्यू मिली है उससे बड़ी है। बड़ी है मतलब मिडल से लेके लास्ट पॉइंट के बीच में कहीं पे होगी वो वैल्यू, राइट, वो आगे नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे फर्स्ट को यहां से यहां मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एफ नाम का हमारा वेरिएबल है उसको हम नेक्स्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम क्या करेंगे, लास्ट को शिफ्ट करेंगे। क्यों लास्ट को शिफ्ट करेंगे, कि अब हमें पता चल जाएगा कि मिड से छोटी वैल्यू है, इसलिए हम आगे वाले पोर्शन में उसको सर्च करने जाएंगे। इसलिए हम मॉडिफाई क्या करेंगे, लास्ट इज इक्वल टू मिड माइनस 1, राइट। फर्स्ट एंड लास्ट मिल गया है हमें, ये भी मिल गया, हमारी ये वाली सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, मतलब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट वाज 0 and second equation first will be mid plus 1, mid is 2, so mid plus 1 मतलब first is equals to 3, right। last will be as it is, so mid will be 5 plus 3 is equals to 8 divided by 2, 4, so value is 4, mid is 4। again check if a of mid is equals to key 56 is equals to 44, no। तो आप क्या करेंगे, again check a of mid means 56 is less than 44, no, it means यहां से आगे वाले कहीं पे हमारी वैल्यू है, तो हम लास्ट इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट विल बी एज इट इज, last will be mid minus 1, 4 minus 1 मतलब 3, so last will be 3 and mid will be 3 only,
मिड इज 3, तो a ऑफ मिड इज 44. 44 इज इक्वल्स टू 44. कंडीशन 3 हो जाएगी और वहां हमें वैल्यू मिल जाएगी, वहां से लूप टर्मिनेट हो जाएगी, राइट? हो गया क्लियर? और कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है? इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किसने किया? लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को ट्राई किया जावा या तो पाइथन में इंप्लीमेंट करने की? लैपटॉप हाथ में लेते हो घर जाके? नहीं लेते हो? लेते होंगे तो भी मूवी देखने के लिए, है ना? हाँ पानी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें वो भी आएगा कि एल्गोरिदम हम बना रहे हैं, उस एल्गोरिदम पे से प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो कितनी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. That is not in our syllabus. Our subject is just to learn how to create algorithm, how to analyze, to create algorithm, how to manage. वो सीखना है हमारा सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट में एल्गोरिदम और उसके टाइप्स और वो सब आएंगे. मैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने को इसलिए बोल रही हूँ कि आपको एल्गोरिदम बना के फिर उसको कैसे यूटिलाइज करें वो भी सीखना होगा एक्चुअल फॉर इंडस्ट्री, राइट? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस रखो. असाइनमेंट में सबको प्रेजेंटेशन में वही देने वाली हूँ, पर सब लोग वो क्या होगा, आपको जो टॉपिक मिलेगा उसका ही आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करो, बाकी का नहीं करोगे, राइट? पर ऐसा क्यों करो? सब लोग सबका इम्प्लीमेंटेशन करो तो सीखने को ज्यादा मिलेगा, है ना? चलो अभी हमें शॉर्टिंग करना है. कोई एल्गोरिदम मुझे नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ जो गिवन वैल्यू है उसको अरेंज करना है. व्हाट विल बी द प्रोसेस? आई जस्ट वांट टू सेट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सब लोग ट्राई करोगे कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. कोई भी एल्गोरिदम हमें नहीं सीखना है अभी, बबल शॉर्ट भी नहीं और सिलेक्शन शॉर्ट भी नहीं, कुछ नहीं. I just want to set the value in ascending order. यहाँ पे वैल्यू है कुछ 55, 44, 43, 77, 99, 11, 22 and 66. चलो ऐसी वैल्यू है. अब इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. क्या करोगे? कोई भी आपको जो अप्रोच यूज करना हो, पर आप कैसे करोगे? zero આવીને વેલ્યુ છે 0 પ્લેસ પર એને કમ્પેર કરતા જઈશું 1 2 3 જ્યાં એ વિષયનાથી મોટી રહેશે ત્યાં એને પ્લેસ કરી દઈશું પેલાને 0 ની જગ્યા પર. Okay, one way is to compare first index value with each and every index and then swap अगर उसमें जरूरत है तो. जैसे कि यहाँ पे 55 और 44 तो हम स्वैप कर देंगे. फिर 44 will be compared with 33, again swap. 33 will be compared with 77, no need to swap. 33 with 99, no need to swap. 33 with 11, we have to swap. Then 11 with 22, no, and 11 with 66, तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में मिल जाएगी. फिर सेकेंड के लिए, फिर थर्ड के लिए ऐसे. ओके, वन पॉसिबल वे. देन सेकेंड वे,
आपको मैंने कंप्यूटर के पास नहीं करवाना है, हमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं, ये डेटा है और आपको सिर्फ लिखना है असाइनिंग कॉन्सेप्ट में। आप क्या करोगे? डायरेक्ट पर दिमाग में तो सोचोगे ना हम, कुछ क्या सोचेंगे? सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो सोच के उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ी कौन सी है वो सोचेंगे। बस वही चीज हमें कंप्यूटर के पास करवानी है। कैसे करवाएंगे? अगर वो आ जाए तो हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करना आ गया, एल्गोरिथम बनाना आ गया। जो वे में हम सोच रहे हैं वही वे अगर हमें कंप्यूटर के पास इंप्लीमेंट करवाना आ जाए, इट मींस वी लर्न हाउ टू क्रिएट एन एल्गोरिथम। यही चीज जो आपने अभी बोली ना, फर्स्ट को कंपेयर करवाओ सबके साथ, वही चीज को अगर कंप्यूटर को समझाना है तो कैसे करो? राइट कोड एवरीवन। यस, कंपेयर करेंगे दो को, और जो छोटी है उसको आगे ले लेंगे। सही है, बट राइट द कोड हाउ यू विल डू दिस। कौन सी इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर को, कैसे करवाओगे? यू नो नीड टू राइट अल्गोरिदम। अगर आपको अल्गोरिदम के स्टेप डिफिकल्ट लग रहे हैं, आप फॉर लूप यूज करो, आप जावा में कोड करो, आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें कोड करो, बट राइट द इंस्ट्रक्शंस। कई बार ऐसा होता है कि अल्गोरिदम में कैसे लिखे वो सोचने लगते हो, वो नहीं सोचना है। मुझे तो सिर्फ कैसे परफॉर्म करोगे वो चाहिए। अल्गोरिदम अभी तो सारे अल्गोरिदम ऐसे ही होंगे कि जहाँ पे कोड भी हम यूज करेंगे तो इजी रहेगा ना। Try create one array, take the input from the user, then you have to iterate a loop, है ना? एटलीस्ट ट्राई, भले गलत तो गलत। चलो बुक निकालो। वेयर इज द बुक? નથી लगा? हाँ तो काढो। अच्छा, तो મને એવું લાગે કે બુક અને પેન લઈને પછી તમે વિચારો તો એવું લાગે કે હા ખરેખર પ્રોગ્રામ નો જ વિચારો છો, બીજું કઈ નથી વિચારતા। ઓલું એવું લાગે કે ક્યાંક ખોવાઈ ગયા છો। Yes, that is true. But how you will implement? How many loops do you need? Swapping will be done with the help of third variable. That is true. But that should be, we should put that code of swapping into the loop. Single loop will be okay, or you need to create nested loop. વિચારવાનું હોય જ નહીં, લખવા માંડો ચલો। લખો લખો, એરે તો બનાવો। कुछ भी आपको जो कंफर्टेबल है उस वे में लिखो।
two loops. Yes, we need to use two loops. બે લોક જોશે ખબર હતી તો લખો ચલો સ્ટાર્ટ કરો વાંધો જ્યાં છે ને મગજમાં તો બધું છે પણ બહાર નથી આવતું तो वो नहीं आएगा जब तक तब तक प्रोग्राम परफॉर्म नहीं होगा और परफॉर्म नहीं होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आता है आपको ये एक लूप में हो जाएगा बेटा एक बार ट्राई रन करके देखो कितने इटरेशंस में होता है आई कार्ड के लिए फोटोज भेजने को बोला था उन सबने फोटोज दे दिए या कोई बाकी है लाओ दे दो पीछे नाम और रोल नंबर लिख देना छेड़े नॉट फोटा तुम्हारा नहीं हो ये मैं તો મેં નામ જેનું લઈ લીધું એના ફોટા નથી ઓનલાઈન ક્લાસ નતો આપણે નામ ક્યારે લીધું બોલો એટલે તમે ક્લાસમાં નહોતા ત્યારે ચલો ફરીથી લઈ લો ऑनलाइन હતા એટલે સુઈ ગયા था आई कैन अंडरस्टैंड जो अंजलि का आ गया है गुप्तिनंद सिंह का आ गया कृणाल ने भी दे दिया भव्य दे दिया था ना आपने भी भव्य दीपांशु ने भी दे दिया एक नरहरी का बाकी है बस हाँ सॉफ्ट कॉपी हो तो सॉफ्ट कॉपी मेल कर दो चलो डन मोबाइल क्यों देखना पड़े उसमें हाँ કે મોબાઈલ નથી લેવો આઈડિયા આમાંથી કાઢો મગજમાંથી જ બહાર કાઢવાનો જ આઈડિયા આ સેમ ઘરમાં ये तो ऑनलाइन कोर्स ये का सब्जेक्ट में किसका नाम चेंज कर दो बेटा चलो बना एल्गोरिथम बना सिर्फ साहिल ने लिख के भेजा मुझे कोड
बोलो, सुहानी ने और साहिल ने दोनों ने भेजा। बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट सबसे हो सकता है। तो गूगल करो એટલે મળે જ ને। ઓનલાઈન હોત તો બધાએ મોકલી દીધા હોત હે। જો આ બધા એવું કહે છે। नहीं नहीं ऐसा मत करना, गूगल मत करना, खुद से सोचना, वरना गूगल को तो सब आता है, वो जॉब नहीं देगा आपको फिर। अंदर खुद तो समझते हैं ना सब लोग कि क्या किया। बस याद इतना रखना है कि अगर हम कोड कहीं से भी लेके एग्जाम के टाइम पे भी अगर पास हो गए तो इंटरव्यू में, प्लेसमेंट का जब इंटरव्यू होगा तब कोई गूगल बाबा हमें हेल्प करने नहीं आएगा। कुछ भी उसमें आपको उस टाइम पे कोई हेल्प नहीं करेगा, बस वो चीज दिमाग में रखना। चलो करें इम्प्लीमेंट उसको। बस जो आपने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट को सबके साथ कंपेयर करो, वही चीज है, उसको बोलते हैं सिलेक्शन शॉट। उसी प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्शन शॉट। मीन्स आपको पता है हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, मीन्स हाउ टू परफॉर्म, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू राइट द कोड फॉर दैट वो नहीं पता है। प्रोसेस आपको पता है। सेकेंड पॉसिबल वे, फर्स्ट पॉसिबल वे, फर्स्ट को हमने सबके साथ कंपेयर किया, राइट? ऐसा किया, दिस इज सिलेक्शन शॉट। ओके, सेकेंड पॉसिबल वे, I am comparing first with second, second with third, third with fourth, fourth with fifth, ऐसे करके एक एक एलिमेंट को अगर मैं उसके इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट के साथ ही कंपेयर करती हूँ, एक को सबको नहीं, तो ये कैसा बन रहा है? बबल शॉट। तो ये बन गया हमारा एल्गोरिथम ऑफ बबल शॉट। प्रोसेस ऐसी होगी बबल शॉट। सिलेक्शन शॉट मतलब फर्स्ट को पकड़ना है और सबके साथ कंपेयर करना, और सिलेक्शन मतलब वी आर सिलेक्टिंग द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, राइट? और यहाँ पे ऐसा होगा कि मैक्सिमम जो होगा वो लास्ट में आ जाएगा इन द फर्स्ट इक्वेशन। उल्टा स्टार्ट होगा। Yes, we have to take a contemporary variable for swapping. That will come in the if condition. कर लेते हैं। चलो करें इम्प्लीमेंट। अगर हमें ये करना हो तो कैसे करेंगे? We have to iterate a loop. क्या लिखा है मौलिक आपने? लिखोगे मतलब वो एनी रहेगा। And if you compare first element with rest of the elements, we can put C over here and D over here. We can compare C will be constant and D will be changing for this group, and we can compare the elements.
For we need two for loops or two loops. For loop क्यों ले रहे हैं? Because it is comfortable. We can initialize a variable in it. We can set the condition and we can use increment और decrement. तो सब एक में ही आ जाएगा तो वो easy रहेगा. वरना क्या होगा, while में बीच में कहीं पे increment करना हम भूल गए तो हमारा प्रोग्राम है वो infinite loop में चला जाएगा. That's why we are using for loop. यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेते हैं. वन इज फॉर फर्स्ट इटरेशन, रोज को कंपेयर करने के लिए, फिर कॉलम के साथ, ऐसा हम समझते हैं अभी. जीरो, क्यों जीरो? स्टार्टिंग विद जीरो, लेस देन 8 एंड आई प्लस प्लस. फोर सेकेंड लूप, इंटीजर j is equals to 0, i plus 1 करें. हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें i से मिलेगा. तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ तो मुझे कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करना है? सेकेंड एलिमेंट से. तो मैं i plus 1 करूँ तो चले, राइट? क्योंकि फर्स्ट i अगर 0 है तो हम कंपैरिजन 1 से करेंगे. अगर i is equals to 1 तो कंपैरिजन 2 से करेंगे, राइट? तो चलेगा. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं i plus 1 then j is less than अगेन 8. क्यों 8? क्योंकि मैक्सिमम कहाँ तक जाना है हमें? 7 तक. उससे ज्यादा हमें लूप इटरेट नहीं करनी है. एंड j प्लस प्लस. कंडीशन क्या आएगी? I want to compare first element with all the elements, right? So if array of I is less than array of j, ऐसा होगा. अगर array of I is equals to is less than array of j, मतलब first for the first time 0 एंड 1 वो दोनों की वैल्यू कंपेयर होगी. अगर यहाँ पे इस केस में भी इट इज कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन उल्टी डाली ना, ग्रेटर देन, तो स्वैप करना है. अगर ग्रेटर देन हुआ तो हम स्वैप करेंगे, राइट? तो यहाँ पे स्वैपिंग का आएगा इंटीजर temp is equals to array of I array of I is equals to array of j and array of j is equals to 10. कैसे होगा आप और ड्राई रन करके समझते हैं. For the first iteration I is equals to 0, right? अंदर आए लूप के अंदर, now j is equals to I plus 1 मतलब 1. Condition is ARR of A of I is 55 is greater than 44. Yes, condition is true. अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? temp equals to ARR of I, ARR of I is equals to ARR of j. मतलब I की वैल्यू j में और j की वैल्यू I में स्वैप हो जाएगी. तो here we will have 44 and 55 after first iteration of inner loop, right? अब इनर लूप में कंडीशन चेक होगी. j is less than 8, yes, j प्लस प्लस करो. अब ये इटरेशन हो गया तो अब j प्लस प्लस, j will be now 2. j is less than 8, yes, again ARR of I मतलब 44. 44 is greater than 33, yes, then swap it, right? तो again
यहाँ पे आ जाएगा 33, यहाँ पे आएगा 44, right? Again j plus plus, j will be now 3. 3 is less than 8. Yes, condition is true. So ARR of I मतलब 33 is greater than 77. No, no swapping will be performed. 33 will be as it is. I plus plus now j plus plus, j is now 4. J is less than 8. Yes. Check A of I. A of I मतलब 33. 33 is greater than 99. No. Condition is false. So no swapping. Again j plus plus. J will be now 5. J is less than 8. Yes. Again comparison. 33 is less than greater than 11. Yes. Condition is true. तो value swap हो जाएगी. यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आएगा 33. Right? Now j plus plus, j is 6. Again 33 is 33 nahi, 11 is greater than 22. No. So no swapping. J plus plus, j will be 7. Again if condition 11 is greater than 66. No. Condition is false. J plus plus, j will be 8. जैसे ही 8 होगा j, ये कंडीशन j is less than 8 वाली कंडीशन false हो जाएगी, मतलब this loop will be terminated. Then again I की loop iterate होगी I plus plus, तो I की value now it is 1. Again j will be initialized with I plus 1, तो यहाँ पे आएगा 2. समझा लो? every single I per person. हाँ સૌથી પહેલા smallest value મળશે. Smallest value. Bubble sort માં સૌથી Bubble પહેલા bound મોટી થશે. value. Now j is equals to 2, area of I मतलब 55. 55 is greater than 44. Yes, तो swapping होगा. j plus plus, so j will be now 3. J is less than 7. Yes, so 44 is greater than 77. No, तो no need to swap. J will be 4. 4 के साथ कंपेयर करो. 44 is greater than 99. No, तो j plus plus 5. 44 is greater than 33. Yes, so swapping. 44. Again, j will be incremented with 1, 6. 33 is greater than 66. Yes. Again, swap होगा. यहाँ पे आएगा 22. यहाँ पे आएगा 33. Right? Again, j plus plus, j will be 7. K of j 66. 22 is greater than 66. No. Condition is false. J plus plus, j will be 8. Loop will be terminated. Now again I equals to I plus 1. I will be now 2. Same process for 2. 2 will be compared with 3. 55 is greater than 77. No. No, condition false. 55 is greater than 99. No, condition is false. 55 is greater than 44. Yes. तो वहां पे इटरेशन स्वैपिंग होगा. यहाँ पे आएगा 44, यहाँ पे आएगा 55. Now 44 is greater than 33. Yes. So again 33 and 44. Then 33 is greater than 66. No. तो loop terminate होगी. Again I will be 3. अब 77. 77 is greater than 99. No. No swapping. 77 is greater than 55. Yes.
55 यहाँ पे आ जाएगा, 77 will be over here. 55 is greater than 44. Yes. 44 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया 55. 55. अब 44 is greater than 66. No, condition is false. Loop ये terminate होगा. I will be incremented with 1. I will be 4. Now 4 के लिए 99 is greater than 77. Yes. तो यहाँ पे आएगा 77. यहाँ पे आएगा 99. 77 is greater than 55. Yes. 55 यहाँ आ जाएगा और 77 यहाँ पे आएगा. 55 is greater than 66. No. तो कोई इक्वेशन नहीं होगा और कंप्लीट हो जाएगी लूप. Now I is 5. 99 is greater than 77. Yes. तो यहाँ पे 77 यहाँ पे आएगा 99. Then 99 से कंपेयर हो गया. 77 is greater than 66. Yes. तो यहाँ पे आएगा 66 and 77 will be over here. अब कंपेयर हो गया, लूप टर्मिनेट हो गई. I will be now 6. 99 is greater than 77. Yes. क्या ये j is equal to I plus 1 क्यों लिया हमने? क्योंकि हमें क्या करना है, हम यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, राइट? पर अगर 0 लेंगे तो वो क्या करेगा, हर बार लूप यहाँ से ही स्टार्ट करेगा और सब एलिमेंट को उसको खुद के साथ कंपेयर करेगा. अगर मैं यहाँ पहुंच गई हूँ सेकेंड एलिमेंट तक, तो मुझे किसके साथ कंपेयर करना है? नेक्स्ट पे ही कंपेयर करना है. पीछे वाले में तो कंपेयर करना नहीं है क्योंकि वो तो फिक्स हो गया कि वो मिनिमम वैल्यू है. इसलिए उसको फर्स्ट सर्च होगा तब भी मुझे किसके साथ कंपेयर करना है? उसके नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करना है. उसको खुद से तो कंपेयर करने का कोई मीनिंग नहीं है. अगर मैं इसको 0 से इनिशियलाइज करती हूँ तो क्या होगा? a of I is greater than a of j. तो a of 0 is greater than a of 0 ऐसा कंडीशन फर्स्ट टाइम चेक होगा. तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं. इसलिए हमने क्या किया, कम इटरेशन में काम हो जाए इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है I plus 1. राइट? पहला फॉर लूप में I less than 7 नहीं और 1 तो પછી હજી 4 છે ને 6 પછી 7 8 0 થી હા 7 લઈએ તોય ચાલે કારણ કે 7 અને 8 નું કમ્પેરિઝન થઈ જવાનું છે. 7 સુધી છે. હા એટલે જશે 7 સુધી પણ પછીની આ લૂપ છે ને ઇનિશિયલાઇઝ ઇટરેટર નહીં થાય કારણ કે જેવું I ની વેલ્યુ 7 થઈ જશે એટલે અહીંયા J ની વેલ્યુ 8 થશે એટલે આ લૂપ અંદર જશે જ નહીં એટલે ત્યાં ટર્મિનેટર થઈ જશે. 7 મૂકી દઈએ તો એ નેક્સ્ટ માં જાય લાસ્ટ ઇટરેશન एक इक्वेशन ओछું થઈ જાય. અહીંયા 7 कर દઈએ ને તો એ 6 ઉપર આવીને અટકી જાય એટલે 6 અને 7 નું કમ્પેરિઝન થઈ જાય, આપણું આઉટપુટ આવી જાય પરફેક્ટ, કોઈ પ્રોબ્લેમ ના. ચાલો કન્ફ્યુઝન થયું? See, so if I is equals to last element for I क्या होगा? अगर ये लूप रखी मैंने लेस देन 7 लिखा मतलब 6 तक की लूप जाएगी. तो जैसे ही I is equals to 6 आएगा J will be 6 plus 1 7. तो 6 और 7 का कंपैरिजन हो गया. 8 लख्यो तो ત્યારે 6 સુધી જ ગયો. हाँ, और हमें ऐसे एल्गोरिथम नहीं बनाना है 7 और 8 लेके. We have to take n. क्यों? क्योंकि एरे हाँ एरे तो डिफरेंट लेंथ का होगा ना. किसी पे हमने 10 एलिमेंट्स के लिए शॉर्टिंग कर रहे हैं, कहीं पे हम 100 एलिमेंट्स के लिए शॉर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें उसकी साइज लेंगे. राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने डबल शॉर्ट किया है तो नेक्स्ट एल्गोरिथम वहां से वो करने ही वाले हैं. क्या हुआ? लैपटॉप को क्या
चलेगा? नो दवाइयां कर डन। सबको समझ में आया व्हाट इज सिलेक्शन शॉर्ट? लास्ट में मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन की कंडीशन है उसके अंदर अगर एक इक्वेशन अगर हम यहाँ पे 8 लिखते हैं तो i एक बार इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 7 होगी और फिर वो यहाँ पे अटेम्प्ट करने जाएगा। भले ही ये फोर लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है। ये फोर लूप तो i j इज इक्वल्स टू i प्लस 1 है, मतलब 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, तो ये लूप में जाएगा ही नहीं। बट एक इक्वेशन ब्लैंक भी वो ज्यादा करेगा, तो उसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे 7 कर दें तो 6 विल बी कंपेयर्ड विद 7 इन नेक्स्ट इक्वेशन, तो उसके आगे एक इक्वेशन हमने कम कर दिया, लास्ट इक्वेशन, बस इतना ही किया। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे i प्लस 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें जो दो एलिमेंट को सेकेंड लास्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है वो यहाँ पे हो जाएगा i और i प्लस 1 से। ठीक है, क्लियर सबको? यहाँ पे भी ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट। कैसा हो रहा है? हर बार वन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद सेकेंड, ऐसे हम कर रहे हैं। फिर यही चीज सेकेंड एलिमेंट के लिए भी होगा, सेकेंड विल बी कंपेयर्ड विद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। फिर थर्ड विल बी कंपेयर्ड विद, सबके साथ ऐसे कंपैरिजन होगा, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये मोबाइल में क्या कर रहे हो कब से? इतना इम्पोर्टेंट है बेटा फोन? हाँ, मैं पहले भी बात कर रही थी तब भी आपका ध्यान फोन में था, अभी भी एल्गोरिथम खत्म हुआ नहीं कि तुरंत मोबाइल आ गया। किसका मैसेज आ रहा है इतना इम्पोर्टेंट? या अपडेट कर रहे हो वी आर लर्निंग सिलेक्शन शॉर्ट, ऐसा रख दो, फोन लॉक करके बैग में रख दो। ये डेस्क पे रखना ही नहीं है फोन। अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैम लेके आते हैं तो मैम भी रख के आएंगे अभी। नहीं करते हैं स्टूडेंट्स ऐसा, मैं टाइप नहीं करूं कोड और अगर बना बनाया कोड दिखाओ तो बच्चे बोलते हैं मुझे भी भेज दो वो कोड। ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स? मैम आपने टाइप नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। શું હકીકત છે? તમે કરતા રહ્યો, વેરી ગુડ। हाँ बोलो। अगर आप प्रिंट करना, अगर कोड लिखते हैं तो प्रिंट तो आई को करना पड़ेगा या प्रिंट यहाँ पे नहीं करेंगे, ये पूरा खत्म हो जाए शॉर्टनिंग, उसके बाद अलग एक लूप लेंगे और वहां पे प्रिंट। यहाँ पे जब प्रोसेस चल रही है तब प्रिंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे इक्वेशंस में अभी हम चेक कर रहे हैं कि पॉसिबल है स्वैपिंग करने की जरूरत है या नहीं। दिस कोड जस्ट फॉर स्वैपिंग एंड जस्ट फॉर शॉर्टिंग। तो लूप अगर आपको प्रिंट करना है तो नेक्स्ट लूप लेके वहां पे करना है। टाइम हो गया है? ओ 11:09 हो गई। अब बोलो तो सही कि मैम लेक्चर हो गया खत्म। સરસ, ચલો તમને લોકોને મજા આવતી હોય ભણવાની તો ગુડ। કોનો લેક્ચર છે નેક્સ્ટ? થિયરી ડાયાગ્રામ્સ આવશે ને? અત્યારે સોફ્ટવેર શું છે ને સિસ્ટમ નો થિયરી આવશે, પછી એનો ડાયાગ્રામ્સ આવશે ને। चलो अटेंडेंस में ध्यान देना।
गुरकिरण सिंह, ध्रुवी, मीत, जील, मिहिर, कृणाल, किशन, नीतीश, जय, पूर्वा, भव्य, प्राची, सोहेल, अरमान, नीलांजना, रूमा, मुस्कान, उत्सव, निधि, साजिद, दीपांशु, साहिल, दारवी, जतिन, जिनल, विश्वा, ध्वनि, खुशिश, मानसी, देव, मानसी is present. देव, ध्रुविल, जय, किशन, नरहरी, जय राठौड़ और जय पटेल, नहीं अभी जय पटेल, फिर आएगा जय राठौड़। किशन है नहीं है, नरहरी है, राहुल, राजवी, फेस याद रही जाए ना धीरे धीरे, कौशल, विधि, ग्रीष्मा, शुभम, नूरेज, ऋत्विक, जैमिन, Present, ma'am. कवल,